Welcome everyone to another exciting episode of Coaches Talk Show. Hope I am audible and visible to each one of you. So I'm going to start this is episode with gratitude to each one of you. So I have received some amazing positive feedback from all the viewers of this show. Thank you so much for all those responses. Now, this Coaches Talk Show is all about bringing stories to the powerful speakers who are doing amazing work in their field, and we just introduce them from their busy schedule to all of you so that you can understand how you can make your life better. So, if you are with me and you are excited about today's episode, give me a yes in the chat box, in the comment box if you're watching on Facebook Live. Let me see how many of you are here. All right. So, those who are watching this show live, please type live in the comments. If you are watching the replay of this session, please type replay in the comments so that we get to know that this timing suits you or not. Let me welcome. Yeah. So welcome to this show once again. Those who have already typed, as we are doing directly from Zoom. I might not respond to your comments directly, but we'll respond it later on. Thank you so much. So let's bring today is our episode 10 in this series of Coaches Talk Show, and this is season 3. So as all of you know that this is actually show where we bring coaches where they share their insights about. Okay, some technical glitch happened. Insights about the topic which we select, right? So today in this episode, I'm gonna talk about one very favorite topic of mine, which is about our performance. That how we can make our performance better. If you are doing any kind of work or you are in business, you might have seen this happening a lot of time, that there are certain things which stops you to take action. So if you are thinking that I'm not getting the salary which I desire, or I'm not making the money, the kind of money I want to make, there is some hidden reason related with your life, related with your performance, which you have to cater and which you have to actually look very seriously, so that you will overcome those issues which will directly, sorry, will help you to increase your money part. So we are going to talk all about this, or I request you, if you are watching us live, please stay till the end. If you put any question, we might take your question as well. So I'm going to start today's show with my introduction. My name is Neha Garg and I am a digital skills coach, helping women to raise their confidence in handling digital platform and technology so that they can grow their business online. Now today is not my day, as I'm a host for this show. Today is the day to listen to our speaker. So I want to share a few things about our speaker of today. Today's speaker, his name is Mr. Siddharth Taya, and he is success mindset coach and a founder of Supersonic Academy, where he actually talk about how you can increase your performance, how you can actually work on your mindset pattern, and how you actually gain what you really want in your life through overcoming all those stress, beliefs, and all of that. So without waiting a moment, we are going to invite him on this virtual stage, and let's hear from him. So Siddharth, welcome to the virtual stage of Coaches Talk Show, and let's bring you on the stage. Welcome to the Coaches Talk Show, Siddharth. How are you? Hi Neha, very good morning. And thank you so much, first of all, for inviting me to be a part of your wonderful community. So thank you from bottom of my heart. Thank you so much for taking time and joining us today. And I feel this is a topic which most of the time, because it is something related to doing some work on our inner self, which many people avoid. So I really wanted to talk about this topic so that many women, because we have mostly the women audience, they can understand how they can make their lives better. And especially if you, like just like you said, that you work with the youth and you work with adults as well, so those who are a parent of a teenager, they will also understand that how they can make that. So we would like to start with, how did you start your journey as a as a coaching in this field, success mindset, and as you said that you work with peak performance. So how did you started on this journey?
Okay. So thank you for asking this question. So it started with my own suffering. I was into depression for 1.5 years. I couldn't even smile. It was a very rough phase. I had no one who could guide me that how to come out of it. Because of that, I wasted couple of years of my life. And then finally, when I found my mentors, though these people taught me the secrets. Now, when I learned these secrets, I came out of all the negativity very fast. And then I realized why these things are not taught in schools and colleges. These are the most essential life skills. And then I set out on a mission that I will teach each youth and adults who are ready to learn these secrets, which are used by elite performing athletes, celebrities, most successful business owners, entrepreneurs. And from those, I learned these things, I implemented in my life, got massive results. And then now I am teaching this to the world so that I can help people live a beautiful life they deserve. That's so inspiring. Thank you so much for sharing this. And I guess all the speaker whom I have heard this, mentors change their life. So most of the time we all have that struggle which nobody sees that we have overcome, which actually made the person who we are today. So when it comes to, the subject you have selected for the work you do, peak performance, I always feel it's like it excites me whenever I'm thinking about, how we can increase our performance in every area of life. So if you just want to define this peak performance term, how would you define it for an individual? Now, again, a beautiful question. So let's say if we start measuring our life, there are majorly just 3 or 4 areas. That's your health, your wealth, your relationships. And if you combine all these three, it equals to happiness. So now what is your current score in your physical health? What is your how out of 10, what mark you will give yourself? How physically fit do you feel yourself? Number two, how mentally fit you feel you are, how negative you are, how positive you are. Based on that, give a mark out of 10. Third, give your relationships a number out of 10 with the closest people around you, because these people have the maximum time you spend with. So, third is relationships. Fourth is your wealth. How much do you score the wealth you have right now? How would you score it out of 10? Are you satisfied? How happy you are with it? Fifth is your career or business. How happy you are with what you are doing right now. And finally, it's how happy do you feel yourself during each day. Once you have this score out of 50 multiplied by 2, you get a score out of 100. Now you know where do you stand. Now, whichever is the lowest, you start working on that. Slowly, you increase the score. A few years back, even like I was at 30, 40 out of 100. Right now, it is constantly above 90. Even if something bad happens, I know how to deal with it. I am always above 90. So now, when you know that you can always be above 90, you can deal with the situations very easily. Now you have the right strategies. You know that, okay, if I do these certain things daily, I would be feeling very good physically. I would be feeling very good mentally. My wealth is increasing. That's all you need to do. Just these 5 areas, and you would feel phenomenal. You would feel so happy that yes, each day is going like crazy. True, and I can just resonate when you were saying that we have different areas and where we will just find out. So I think it all start with analyzing. सबसे पहले हम पता करें कि एक्चुअली हमारा स्कोर क्या है एंड उसके बाद आगे बढ़े जिससे हमें पता चलेगा कहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि जी, कुछ लोग बिल्कुल। अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपने जी। बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. सो आप जब लोगों के साथ में काम करते हैं एंड व्हेनेवर यू सी दैट ओके समबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर एरिया, सो कॉमनली अगर आप जैसे आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, सो कॉमनली आपने क्या पैटर्न देखा है कि ज्यादातर लोगों को कौन से एरिया में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे वो फेस कर Okay. रहे होते हैं? So the number one thing, there is only one field. We talked about 5 areas of life, but in 5 area ka ek,
there is a father of all these five areas. That father is your mind, your mindset. So आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी करनी है, बट आप सुबह उठ ही नहीं रहे हो, आपका बॉडी हेल्प ही नहीं कर रहा. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ योर माइंड. आप बहुत पैसे बनाना चाहते हो, देयर आर मेनी पीपल हु वर्क वेरी हार्ड and they are doing so many things, they are really working hard, but still not making money. Why? Because there are blocks, negative blocks related to money in their mind. Because of that, they are not able to make money. Same relationships, they react very fast, they get angry very fast because they have no control over their mind, their emotions. So it all starts with your mind. Once you know how to control your mind, how to conquer it, you would easily be able to deal with every area of your life easily. So that's the one thing I first primarily work on with each of my client and students. Right. Can you share one of commonly asked a problem related where you understand, okay, this person is having some issue with the mind. That means in their mind, whatever they want to achieve, they are not able to achieve, and that's where you recognize, okay, this is the thing they are facing. And if it is something which you can share, which is common to other people, it might can help other people to understand, okay, I am also feeling the same thing. ऐसा कुछ है जो आपने कभी Absolutely. एक्सपीरियंस किया है? Absolutely. It all comes down to two major issues, which is number one, I am not loved. मुझसे कोई प्यार नहीं करता. Second is I am not enough. मैं ये नहीं कर सकता. These are the only two issues जब आप deep dive करेंगे. So whenever I ask someone कि they say मेरे को anger issues है. So they get angry on their spouse. Now when I ask them why you get angry, he didn't do it. I told them कि ये towel यहाँ नहीं रखना है, फिर भी वो यहीं रखता है या रखती है. And then they, because of just this slight thing, they get angry. वो एंगर से वो इशू बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाता है, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है. नाउ व्हेन आई आस्क देम मोर डीपर, अच्छा आपको क्यों लगा, व्हाई उन्होंने वो नहीं रखा, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, इसमें आपको गुस्सा क्यों आया? सो नाउ द रियल रीजन कम्स. फर्स्ट इज ईगो कि मैंने कहा और वो काम नहीं हुआ. बट उसके भी एक और लेयर जब अंदर जाता है, मतलब ये इंसान मुझसे बोलता है कि मैं इससे प्यार, दे लव मी, बट व्हेन आई आस्क देम कि ये काम करो तो ये नहीं कर रहा है, दैट मींस दिस पर्सन डजंट लव मी. And that's the core reason. There is no anger issue. The real reason they feel inside, deep down in their heart, is that I am not loved. मुझे ये प्यार नहीं करता actually. And because of that, the emotions come, the anger comes. Same if someone says, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मेरी तो किस्मत ही खराब है. My luck is so bad. Every time, whatever I do, it goes wrong. Now this is a belief. जब आप एक नेगेटिव थॉट को बहुत बार रिपीट कर लेते हो, वो एक बिलीफ बन जाता है. अब जब वो बिलीफ बन चुका है, देन आपको हर चीज उसी एंगल से दिखाई देगी. सो अगेन, जहां उनको लगता है कि बचपन में किसी ने उनको कह दिया कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, एंड उनको नहीं पता कि वो एक इंसिडेंट कितने साल पहले हुआ था, बट उसको वो दिल में लेके बैठ गए. नाउ वेन एवर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड फिर उनके माइंड में कहीं पीछे से वो थॉट आता है कि यार उसने भी बोला था, पेरेंट्स ने बोला था तू कुछ नहीं कर सकता, तू गधा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कुछ करने वाले होते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, उनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, मेरे बस का ही नहीं है. These are the two major issues that each one of us face in our life. Just when you were speaking, na, I was going into that zone where I see that, women in our community also face the same thing. It's like somebody not understanding that, sometimes children doesn't understand that what mother is doing, and they kept on blaming the mother that you don't give time to us. Then family member also thinks the same, but that women is actually struggling with so many things. So just the moment you were saying that, तौलिए वाला एग्जाम्पल कि ऐसे हो जाता है, दैट इज अ रियल फैक्ट फॉर सो मेनी वुमेन, दैट इज हैपनिंग. इवन बच्चों के साथ में भी होता है. सो ये सारी चीजें जो है ना लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं. आई ट्रूली रेजोनेट विद दिस. आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बता सकते हो उन लोगों के लिए जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, बट
somehow they don't know what should be the solution. I know the solution is simply to work with the course, but it's still they can start with something as the practices. Can you share few of the example for all of us? डेफिनेटली. सो नंबर वन थिंग इज, आपकी लाइफ में जो भी बाहरी सर्कमस्टांसिस में हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरा हस्बैंड या वाइफ मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है, मेरा बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इनर थिंग. मतलब इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करूँ तो, जैसा आपके अंतर मन में आपने अपनी खुद की छवि बना रखी है, वैसा ही बाहर रिफ्लेक्ट होगा. जैसा आप मन में खुद के लिए सोचते हैं, वैसा ही बाहर वाले आपको ट्रीट करेंगे. आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते. डीप डाउन अगर आप अंदर में बहुत जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते. अगर आप अंदर से खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपका ये सारी इनर वर्क पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाहर के सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग जाएंगे. सडनली आपको एक मैजिक फील होगा कि मेरे प्रति लोगों का बिहेवियर चेंज होने लग गया है. सो नंबर वन थिंग जो आप इसमें कर सकते हैं, डेली 5 मिनट शांति से बैठिए, सब कुछ हटा के, नो फोन नथिंग, एक पेन और पेपर लेके. सो जब आप शांति से 5 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे. ये सारे थॉट्स आपके मन के अनरिजॉल्व इश्यूज है जो अंदर बैठे हुए हैं. लेकिन जब भी हम शांत बैठते हैं तो ये आने लग जाते हैं. जैसे ही ये बाहर आते हैं, हमारा ब्रेन क्या बोलता है, भाई ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है. तो हमको डिस्कम्फर्ट पे नहीं जाना है. आप क्या करो, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को. फोन चला लो, रील देख लो, कुछ भी और कर लो, नेगेटिव थॉट को माइंड में रिपीट कर लो. इवन दैट इज एन एडिक्शन. कुछ कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब, अल्कोहल एडिक्शन, फोन एडिक्शन, एवरी एडिक्शन इज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि आप अंदर के इश्यूज को सॉल्व नहीं करना चाहते. योर ब्रेन रीडायरेक्ट्स यू कि भाई ये टफ है, इसको मत फेस करो, आप कुछ और कर लो इस टाइम. सो दिस इज द प्राइमरी रीजन. नाउ जब आप शांत बैठोगे 5 मिनट, ये सारे थॉट्स आएंगे, उनको एक पेपर पे लिख लो. नाउ यू नो कि भाई मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव चल रहा है. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरा पेपर लो, उसके ऊपर इन सब का उल्टा लिख लो. तो जैसे आपके मन में आ रहा है पहला थिंग कि यार मेरी कोई नहीं सुनता, तो आप दूसरे पेपर पे क्या लिखोगे, सब मेरी सुनते हैं. आपके मन में आ रहा है कि मैं, मेरी किस्मत ही खराब है, आप सेकंड पेपर पे लिखोगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. पहले आपके पास एक नेगेटिव शीट है, उसका आपने पूरा ऑपोजिट करके एक पॉजिटिव शीट बना लिया. नेगेटिव शीट को जला दो. इवन बर्निंग समथिंग रिलीजेस लॉट्स ऑफ नेगेटिव इमोशन. मेरे एक स्टूडेंट को मैंने बस ये दो चीजें करवाई थी. एक मैंने ये पेपर बर्निंग एक्सरसाइज करवाया था, और पॉजिटिव लिखवाया था. पॉजिटिव वाले पेपर को फोल्ड करके अपने पास रख. अब जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, उस पेपर को निकालो, पढ़ना शुरू कर दो. सो सिंपल. ये भी अगर आपने कर लिया ना, एक हफ्ता, एक महीना, यू विल कम बैक एंड से कि लाइफ चेंज हो गई है, बहुत डिफरेंस फील हो रहा है. सो सिंपल, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. Correct. The moment you were saying burning, I just remembered a movie scene where Karina Kapoor was just taking that paper out of her life, and the moment she did it, she became the same person she was before anything happened with her. So I can truly resonate with it. This thing really worked, and as you said, writing and all of that. If you have also experienced that there are so many people who learn from here and there, they go to buy the courses, they attend the classes. Now if you ask those person the same problem, they know what to do. They will tell us that okay, reading कर लेनी चाहिए, writing कर लेनी चाहिए, meditation कर लेनी चाहिए, वो सब कुछ बताएंगे. But जी. as per your experience, what do you think that why people do not take action even though they have the knowledge that today if people are making notes, they know that what they need to do in which situation, the simple activity you told, but as per your experience, why they don't do it? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इज, जब हम किसी एक ही बिहेवियर या पैटर्न को माइंड में बहुत बार रिपीट करते हैं, स्लोली हमारी बॉडी उस चीज को सीख जाती है. सो जब हम नया नया टू व्हीलर या फोर व्हीलर सीखना स्टार्ट करते हैं, शुरू में प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे वे बिकम मास्टर. 1 साल बाद हम फोन पे बात करते हुए भी लोग गाड़ी चला लेते हैं, बिना बातें करते करते भी उनको रास्ता पता है, वो इजीली मोड़ लेंगे.
उनको सब पता है गियर कैसे बदलना है, एवरीथिंग दे नो, क्योंकि आपकी बॉडी वो पूरा प्रोसेस सीख चुकी है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं गियर दबाऊं, एक्सेलरेटर दबाऊं, गियर क्या चेंज करना है, कुछ भी नहीं, बिकॉज यू हैव बिकम अ मास्टर। सिमिलर वे, आप अगर किसी नेगेटिव थॉट को बहुत रिपीट कर देते हैं, किसी बिहेवियर को, फॉर एग्जांपल आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो आप बैठ के सोच रहे हो कि यार पता नहीं मेरे को करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है। स्लोली आपका बॉडी उस पूरे चीज को धीरे 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 अडॉप्ट कर लेगा। अब आप कुछ पॉजिटिव सुन भी लोगे तो 5-10 मिनट आप बहुत एक्टिव रहोगे कि यस आज तो जिंदगी बदल दी हम। यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, या कुछ नई टेक्निक सीख ली, नया कोर्स में एनरोल कर दिया, यस अब तो जिंदगी बदल देंगे। एक हफ्ते बाद बैक टू द नॉर्मल, आप फिर से उसी बॉडी बिहेवियर, आपका बॉडी आपको रिकवर ही नहीं करने देगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर चुका है। सो द सॉल्यूशन इज अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर आपको बोलता है कि तूने बोला था रनिंग के लिए जाऊंगा, आज क्यों नहीं गए? कल सुबह मैं तेरे को उठाऊंगा 5 बजे, मैं तेरे को कॉल करूंगा, जब तक तू उठ के दौड़ेगा नहीं तब तक मैं तेरे को कॉल करता रहूंगा। आप एक दिन काट दोगे, दूसरे दिन काट दोगे, तीसरे दिन तो आपको मजबूरी में उठ के दौड़ना ही पड़ेगा। ये फिर से कॉल करेगा, फिर से परेशान करेगा। आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते ना, आपका फैमिली मेंबर है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अब आपको पता है कि मेरे भले के लिए ये ऐसे कर रहा है। जिस मोमेंट से अकाउंटेबिलिटी आती है, आपको वो चीज अपने आप एक फ्लो में आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। सेकंड, स्टार्ट विद 7 डे चैलेंज, कि मैं 7 दिन तक ये चीज करूंगा। 7 दिन करने के बाद क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ। 7 दिन के बाद उसको 2 वीक चैलेंज कर दीजिए, फिर 1 मंथ कर दीजिए। अब धीरे धीरे 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी को वो नई हैबिट आने लग गई है। विद इन 1 मंथ आपको वो हैबिट बहुत अच्छे से आ जाए। लेकिन उस 1 महीने के बाद अगर आप फिर से करना बंद कर दोगे तो फिर से बैक टू वहीं पहुंच जाओ। सो एटलीस्ट आई टीच फॉर 3 मंथ्स, मेरे किसी भी स्टूडेंट को मैं 3 महीने से पहले नहीं छोड़ता कि भाई 3 महीने तुम पूरा ये करो, तब आपका पूरा ब्रेन बहुत अच्छे से रिवायर हो जाता है। तो जो भी नेगेटिव रिवायरिंग थी वो हटके पॉजिटिव रिवायरिंग हो जाती है। सो गो फॉर दीज 3 मंथ्स, स्टार्ट विथ 7 डेज, गो फॉर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ आप पुरानी हैबिट पे चाह के भी नहीं जा पाओगे। That was really amazing. You know, the moment you said now, first you start with 7 days and you increase the timeline. I think if we do in this process, we can actually move to that step. But as I just said, you know, people know all this about like how, what we can do, हम्म। how we can do, and they even go somewhere and they give a talk to it also. Even people who are in this field of life coaching and all of that, they know what they need to do in certain situation, but it's still not, they are not able to do. So the one thing which I am taking as a takeaway is the accountability part. You यस। said ना कि आपको यस। accountability की जरूरत है. एंड एब्सोल्युटली। यहाँ पे कभी भी आपने फील किया है कि जब हम अकाउंटेबिलिटी एज अ कोच देते हैं या फिर जब हम अकाउंटेबिलिटी एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड देते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है. तो आप यस। क्या रेकमेंड करते हैं? क्योंकि कई बार हम लोग ना अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड्स में ढूंढते हैं क्योंकि वो चार्जेबल नहीं होता है. कोचिंग जो होता है वो एक तरीके से पेड जॉब होता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं. तो आपने क्या डिफरेंस देखा है कि अपने दोस्त से इसमें सपोर्ट लेना या कोच का सपोर्ट लेना? क्यों लेना चाहिए कोचेस का सपोर्ट लोगों को अपनी हैबिट्स बिल्ड करने में? क्योंकि वो अभी भी किसी ना किसी दोस्त का, चाहे फैमिली में कोई मेंबर, इसका सपोर्ट ले रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. एंड उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नाउ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स समटाइम्स उनको भी नहीं पता होता है कि किसी सर्टेन चीज से बाहर कैसे आना है। दे कैन नो योर थिंग्स, दे कैन अंडरस्टैंड, और वो चाहते भी हैं आपकी हेल्प करना, बट जब उनको ही टेक्निक्स नहीं पता तो वो आपको कैसे हेल्प करेंगे? एट मैक्स वो ये बोल सकते हैं कि तूने बोला था तो ये काम कर, बट वो चीज आपने करना स्टार्ट भी कर दिया, बट उसके बाद क्या? अगर कुछ नेगेटिव थॉट बहुत रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे? सो यू नीड समवन हु कैन हेल्प यू, जिसने पहले से ये चीज खुद की है। आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन माई सेल्फ विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी थेरेपी, एंड जब मुझे ये समझ में आया कि यार मैं तो सिर्फ कुछ टेक्निक्स ब्रेन रिवायर करके भी अपने आप को किसी भी लेवल पे पहुंचा सकता हूँ, तो ये चीज मुझे सिर्फ एक कोच ने सिखाई। लेट से मेरे पास कोई कोच या मेंटर नहीं होते तो मैं आज भी वहीं पे होता जहां मैं 5 साल पहले था। जीरो इम्प्रूवमेंट, मेरे दोस्त मुझे क्या ही हेल्प कर लेते।
अगर मेरा दोस्त एक्सपर्ट है, इफ ही इज अ पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, देन आई कैन गो टू हिम। बट अगर वो खुद की लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी अदर एरियाज में, तो वो आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर अ फिटनेस एक्सपर्ट, डेफिनेटली गो फॉर देम फॉर फिटनेस। बट देन इफ दे आर नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, दे आर नॉट पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, देन आप उनके पास भी चले जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकंड, आपने अपनी स्कूल लाइफ में कितना पैसा लगाया, कॉलेज में कितना पैसा लगाया। कोई भी मेंटोर आज तक की लाइफ में मैंने जितने भी देखे, नो वन इज चार्जिंग दैट मच, एंड दे आर टीचिंग यू रियल लाइफ स्किल्स। जो आज आप सीख गए, तो आप बची हुई पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर लोगे। सो ऑलवेज इन अ टाइम फ्रेम ऑफ आवर योर ओन लाइफ, आपको फील होगा कि जो कोच ने अमाउंट लिया है वो बहुत कम लिया है और सिखाया बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप अगर 1 लाख के इंसान थे, तो कोच ने 2 लाख रुपए लेके, 1 लाख रुपए लेके, 5 लाख रुपए लेके आपको 10 लाख का इंसान बना दिया। अब आप हर साल 10 लाख बना सकते हो। सो सिमिलर वे, एक कोच आपकी वैल्यू बहुत बढ़ा देता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड दैट विल समवेयर गिव यू सो अमेजिंग रिजल्ट कि आप जब पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ में, तो आपको लगेगा वो बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का, टू गो टू अ कोच एंड अ मेंटर। दिस इज व्हाट आई वुड से। Thank you so much, and I'm really, really inspired with whatever you have shared. And as a coach, so those of you who are listening as a coach, believe in yourself that you are doing an amazing work. And those of you still thinking about hiring a coach, working with a coach, now you have the reason why you need to work with a coach. Now I'm curious to know about that when I was reading your whatever you are doing, and I was so inspired with like you are you have your own business with this coaching business. Apart from that, you are also a mountaineer. You are interested in karate, so you are following your passion as well, as I can see. How did you manage all of those things? Like sometimes we think that our coaching business is something we are not able to manage, but you are managing multiple things. You are following your passion as well, and also you are dedicated towards your clients as well. So how it is helping you to grow as a person, if you would like to share, and also how do you manage everything, if you want to share some insights to those people who are actually multitasking, doing multitasking. Absolutely, really a question very close to my heart. सो जब, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू माउंटेनियरिंग, तो माउंटेनियरिंग में देर आर सर्टेन चैलेंजेस। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बार मेरी बॉटल में पानी जम गया था, एंड आई वॉज वेरी नियर, 80% हमने क्लाइंब कर लिया था एंड 20% बाकी था और पानी नहीं था पीने को। एंड आई वॉज लाइक, गए आज तो, आज मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा। बट आई सेड चलो, अब जब मरना ही है तो पहले पीक पे सबमिट कर लेता हूँ, एटलीस्ट झंडा लहरा देता हूँ भारत का। एंड फिर कोई बात नहीं, चले भी गए तो कुछ तो अच्छा किया लाइफ में। सो आई रीच द टॉप। अब मैं सोचा कि चलो अब ठीक है, एंड समहाउ, तो जब आप ऐसे किसी सिचुएशन से डील करते हैं, एंड देन देयर वाज दिस अनदर इंसिडेंट जहाँ 50 लोगों का ग्रुप था एंड आई वाज लीडिंग द ग्रुप। और हम लोग, मेन समिट उसी दिन था, और उस दिन रात को वेदर खराब हो गया बहुत। अब ये एक ऑप्शन था कि यहाँ से लौट जाओ, मतलब पूरा ट्रिप खत्म, कुछ भी नहीं किया, तुरंत सीधे बेस कैंप पे पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर 2 इज फाइट करेंगे और कैसे भी करके नेक्स्ट कैंप तक पहुंचेंगे, समिट पार करेंगे। somehow everyone was very supportive, very courageous, सबने बोला नहीं नहीं करते हैं, चलो आप बस हमारा साथ दो, हम कर लेंगे। एंड देन वी वेंट ऑन द टॉप, और फिर उसके बाद जो सबके चेहरे पे खुशी थी, जो सबकी आंखों में आंसू थे, जो ब्यूटीफुल व्यू था, मतलब वो व्यू देख के मेरे आंखों से अपने आप आंसू गिरने लग गए। जस्ट सेट देयर एंड जस्ट, इतना ब्यूटीफुल व्यू, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। नाउ जब आप इस तरह के चैलेंजेस से ओवरकम करते हो, और जब आप रियल लाइफ में आते हो, तो यहाँ की डिफिकल्टीज बहुत छोटी लगने लग जाती है। यहाँ आप देख रहे हो कि लोग रो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एसी नहीं चल रहा है, कूलर में ये प्रॉब्लम है, रो ही रहे हैं, हर चीज के लिए रो रहे हैं, एयरपोर्ट पे लाइन बहुत लंबी है, फेवरेट फूड नहीं मिल रहा है। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या कर रहे हो, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, खुश रहो यार, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सो यहाँ से जब आप कुछ रिस्क टेकिंग चीजें करते हैं, सी आई एम नॉट सेइंग गो टेक ट्रेमेंडस रिस्क, आई एम सेइंग आप किसी ग्रुप के साथ जाओ and then take a calculated risk, very simple, and that would really help you grow as a person. Then you will become very peaceful, very calm, very happy. आपको पता है, एक बैकपैक में यार मैंने 10-10 दिन निकाला है,
जहाँ कपड़े भी चेंज करने को नहीं मिले, एक ही लेयर पे लेयर, इतनी ठंड, रात को नींद नहीं आ रही ठंड से, इतना कुछ देखा है। तो ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, बच्चों जैसी चीजें ये। एंड देन यू फील योर सेल्फ हैविंग अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। सेकंड, जब आप मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करते हो, सो जब माउंटेनियरिंग की बात आती है, आई डू इट वंस और ट्वाइस अ ईयर। यू कैन डू इट एवरी सिंगल month, because we have family, we have responsibilities. So go for it once a year, so that you relive yourself. आप फिर से एक नए इंसान बन के आओ, you remind yourself कि okay. Now second, आपके शहर में, आपके आसपास भी कुछ छोटे मोटे पहाड़, छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ ना कुछ एडवेंचर ग्रुप जरूर होगा। फाइंड देम आउट। तो जब वीकेंड मिलता है, तो मैं नहीं कह रहा हर वीकेंड, बट महीने का एक वीकेंड अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कुछ एडवेंचर पे जाओ, कुछ हमारे यूनिक घर में करो। है, एक हम्म, पहाड़ है हमारे घर में, वो है हम्म, सीढ़ी। जी, चढ़ो एब्सोल्युटली। उतरो। ट्रू। इवन जब आप रोज सीढ़ी चढ़ते हो, यू डोंट नीड टू गो टू एनी फिटनेस सेंटर। आप उसी को 5-10 बार चढ़ लो, घुटने उठने सब मस्त रहेंगे जिंदगी भर। सो दिस इज अनदर पॉइंट। नाउ जब मार्शल आर्ट्स की बात आती है, आई जॉइन मार्शल आर्ट्स एट द एज 27। मतलब मैं मेरी क्लास में सबसे ही बड़ा था वहां पे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हाईएस्ट थे, तो कॉलेज के बच्चे थे, बट आई वाज लाइक लीग अहेड। मैं तो अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या। देन वहां पे एक ऑप्शन होता है, आप गिव अप कर दो, आपको लगे नहीं यार यहाँ तो सब छोटे बच्चे हैं, इनके साथ मेरी क्या। नहीं। सो वहां पे भी जब मैं उन कॉलेज के बच्चों के साथ, व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग, डूइंग द एक्सरसाइज, आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं टॉप पे रहूं, सबसे तेज दौड़ूं इनमें से, सबसे अच्छे से अपने वर्कआउट्स करूं। जब मार्शल आर्ट्स आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता है, एंड मार्शल आर्ट्स ही नहीं, यू कैन जॉइन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। आपको बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन खेलो, लॉन टेनिस, जो पसंद है वो करो। बट स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट्स आपको ना सिर्फ फिजिकली फिट बनाता है, बट मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब आपको दर्द को सहने की आदत है, दर्द आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। और जब आप दर्द में मुस्कुराना सीख जाते हो, मतलब आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन को आराम से डील कर लोगे। सो मार्शल आर्ट्स आपको दर्द में भी मुस्कुराना और खुश रहना सिखाता है। सो ट्राई न्यू थिंग्स इन लाइफ। आपकी एज 50-60 क्यों ना हो, आपको अगर शौक है कि यार मेरे को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना था कॉलेज के दिन में, अब जाके सीखो। दुनिया की परवाह छोड़ दो, जो दिल कहता है वो करो, एंड सून यू विल फाइंड योर सेल्फ अमंग द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। And I think that matters the most, because whatever you were saying na, I can see that you are living your life. There are so many people who are not living their life. They are, stuck in just that thought pattern, घर में क्या प्रॉब्लम है, काम में क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैं काफी सारे लोगों को देखती हूँ जो अपना जॉब भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, उनके प्लान्स होते हैं, वो सब कुछ उस तरीके से जीते हैं। कई लोग, मैं यहाँ पे मानती हूँ कि कई लोगों को ना डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम दूसरों के हिसाब से क्यों जिए। बट एक्चुअली डिसिप्लिन इज एक्चुअली ट्रू वे ऑफ लाइफ, विच आई कैन सी इट लाइक यू हैव प्लान कि मुझे इस ईयर में ये माउंटेनियर के लिए जाना है, कराटेज के लिए जाना है, एंड ऑल ऑफ दैट। Thank you so much for sharing that. So those of you who are listening to us, and Kamar, thank you so much for sharing that, and all those people, Shiny, Gurdeep, uh, Josna, whoever joined us, thank you so much, and hope you got some insight that he's doing multitasking and he's doing his life coaching work, which I like deeply, inspire me that most of the time we complain about this not working, that not working, but just see the different side of the life that really make a difference. Now, as we are moving to the end of the show, we would like to understand, like, when you have given us your information, and there is like you have written a book also, founder of Hatch of the Floor 17. So, what was your message behind, writing that book, and for whom you want to give the message? Now, the problems and the circumstances which people might be facing. So, one powerful message which you want to give people so that they can make their lives better. थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नाउ ये जो पूरी बुक है, ये इस बारे में है कि आप कुछ भी कर लो लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आएगी। आप बक्से में बंद हो जाओ कि आप जो चाहे कर लो, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ इन प्रॉब्लम्स के सामने सर्टेन पॉइंट्स आपको लगेगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, ये लाइफ है ही क्यों, क्या तो रोज ही चलता रहता है जिंदगी में, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं।
मेरे माइंड में भी आया था बहुत साल पहले। आई थॉट कि उस बुक का हेडिंग ही यही है, द एज ऑफ फ्लोर 17। मतलब मैं 17 फ्लोर के एज पे खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि मैं कूद जाऊं या क्या करूं, तो लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ पर्पज नहीं है। तो वहां पे मैं सोचता हूँ कि कूद तो मैं कभी भी सकता हूँ, तो क्यों ना एक बार वापस जाके फाइट बैक करूँ लाइफ में, क्यों ना एक और चांस दूं खुद को। एंड देन आई कम बैक, और फिर लाइफ के सारे एक के बाद एक सिचुएशंस आते हैं, हम मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हैं लाइफ में। यूथ होता है, कॉलेज लाइफ के अलग चैलेंजेस होते हैं, मैरिड लाइफ के, फिर किड्स होते हैं उनके लाइफ के अलग चैलेंज। सो उस पूरी जर्नी में हाउ यू कैन बी हैप्पी ड्यूरिंग दैट एंटायर स्टेज, हाउ यू कैन फेस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस विद अ काम माइंड, विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो वो पूरी बुक उसी वही प्रिंसिपल्स सिखाती है। एंड वंस यू नो द प्रिंसिपल्स, तो फिर प्रॉब्लम का मैटर नहीं करता। आपको प्रिंसिपल्स टेक्निक्स पता है तो आप किसी भी चीज से बहुत आराम से बाहर आ जाओगे। सो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बट यू शुड नो कि मेरे को डील कैसे करना है उनसे। Thank you so much for sharing this. And still, if you feel that I don't know how to deal with it, only one single solution: work with a coach, right? So, we would like to know that if anybody is interested to work with you or just want to understand what are challenges they are facing, is there anything, any program you run or you give any one on one, call with the person? Would you like to share with us so that they can connect with you? एब्सोल्युटली। सो राइट नाउ, पहला, अगर आई विल शेयर द लिंक, अगर आप चाहें तो आपको मुझसे बात करनी है, आपको समझना है कि कहाँ आप स्टक हो। सो फर्स्ट इज अ डिस्कवरी कॉल, जहाँ हम बैठ के समझते हैं कि आप कहाँ पे हो, आपको जाना कहाँ है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड देन अगर हम दोनों को लगता है कि यस, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर यू अलाइन विद मी, तो हम आगे एक प्लान बना सकते हैं। सो बेसिकली पहला डिस्कवरी कॉल का कोई चार्ज नहीं होता है। सो वंस आफ्टर द डिस्कवरी कॉल, इफ यू फील ऑल राइट, तो मेरे 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहता है। जैसा मैंने बताया था कि 3 मंथ्स लगते हैं ब्रेन को रिवायर होने में। वंस यू गो थ्रू दैट 3 मंथ्स, अब आप लाइफ में तैयार हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। और इसमें वीकली टास्क होते हैं, जो मैं आज आपको टास्क देता हूँ वो आपको पूरे वीक करने रहते हैं। और वीकली एक बार 1 to 1 कॉल होता है। सो 12 वीक्स, 12 1 to 1 कॉल्स होगा पर्सनल। जो कोई ग्रुप कोचिंग अभी मैं नहीं करता, आई जस्ट डू पर्सनल, आई लाइक गिविंग पर्सनल अटेंशन टू माई स्टूडेंट्स एंड माई क्लाइंट्स। सो राइट नाउ दिस इज द ओनली प्रोग्राम दैट आई रन, एंड दैट्स ऑल। Thank you so much for sharing this. So, any one of you interested to actually overcome those mindset pattern, if you feel somewhere you stuck and you want to overcome and see your life on a better side, then he's the right person. I'll be sharing the link in the description once this live over. You can connect with him. You can also follow him on Instagram. We will share the link as well for the Instagram so that you can continue your learning journey with them and with other speaker as well. So thank you so much, Siddharth, for coming to this show. And I'll just complete this show. And I would like to share gratitude to you to come for this show and share your insights. I really loved whatever you shared, and those who are commenting, I feel you also get the clarity. So gratitude to you and to the all audience. Please share your feedback with us on personal chat so that we can bring another speaker on this virtual stage so that you will get the powerful insight from us. So we'll see you in another episode of this Coaches Talk Show. Thank you so much for joining us today. Do share with others so that they can also inspire from all the conversation we had so far. So bye bye everybody. See you in the next episode. Take care and bye Thank you so everybody. much. Thank you so Bye. much. Thank